چاہے وہ وراثت کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ عدت کا معاملہ ہو، نان و نفقہ کا معاملہ ہو، متبنہ کا معاملہ ہو، ان تمام مسائل کے اندر آپ بات کیجئے. قرآن جو ہے، قرآن اور حدیث کے جتنے بھی احکام ہیں، یہ تمام کے تمام دلائل کی بنیاد پر آپ دلائل سے بات کیجئے ہمارے سامنے. جو ہماری رائے تھی اور ہماری جو اس کے اندر ہماری درخواست ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ بل کو لایا جا رہا ہے. در حقیقت یہ جو ہے مسلمانوں کو تھوپا جا رہا ہے. اس ملک کا آئین بھی محفوظ رہے اور مسلمانوں کے جو مائنورٹیز کے حیثیت سے جو مسلمانوں کو جو رائٹس ملے ہیں اس کا بھی تحفظ ہو. اسی وجہ سے ہم اس UCC کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں. وراثت کے مسائل کے اندر اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جاتا ہے اور ایسی صورتحال کے اندر سیدھا جو ہے قرآن کی آیتوں کے ساتھ اور قرآن کے احکام کے ساتھ اس کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ UCC گجرات سرکار نے اس کے اوپر جو ہے ودھان سبھا کے اندر لانے کا فیصلہ کیا اور قانون بننے کی طرف وہ جا رہا ہے. در حقیقت جو ہے پہلے سے ہی اس دیش کے مسلمان جو ہے یونیفارم سول کوڈ کے مخالف ہیں، کیونکہ اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کو دستور کے اعتبار سے جو مذہبی آزادی ملی ہوئی ہے، اس آزادی کے اندر جو ہے یہ رکاوٹ ہے بہت بڑی یونیفارم سول کوڈ. ہمیں ہمارے جو پرسنل مسائل ہیں، طلاق، خلا، وراثت اور وغیرہ وغیرہ، وہ تمام کے تمام مسائل کو مسلمانوں کو اپنے شرعی قرآن اور حدیث کے روشنی کے اندر عملی طور پر زندگی گزارنے کا اس ملک کے دستور نے، اس ملک کے آئین نے مسلمانوں کو اس کا رائٹ دیا ہوا ہے. لیکن پچھلے کئی سالوں سے جو ہے کئی ایسے بل آئے ہیں موجودہ سرکار کی طرف سے جو مسلمانوں کی مذہبی جو آزادی ہے اس آزادی کے اوپر بہت بڑی رکاوٹ بننے جا رہے ہیں. اسی میں سے ایک اہم بل جو ہے یونیفارم سول کوڈ ہے. آل انڈیا ملی کونسل گجرات یونیفارم سول کوڈ کی سخت مخالفت کرتی ہیں. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم نے پہلے ہی دن سے جو ہے آل انڈیا ملی کونسل گجرات اس کو مخالفت اور اس کی جو ہے مخالفت کی پوری کوشش کی ہے اور اس کے اوپر ہم نے تجاویز بھی پاس کی ہے. اس کے اوپر ہم نے جو ہے میٹنگیں بھی بلائی ہے اور گجرات کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. لہذا ہم جو ہے کیندر سرکار سے اور خصوصاً گجرات سرکار سے اور گجرات کے چیف منسٹر سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو اور مسلمانوں کو اپنی مذہبی جو آزادی جو ملی ہوئی دستور کے اندر اس کے اندر آپ رکاوٹ نہ بنے اور مسلمانوں کو اس کا حق دیں. لیکن کیسے کچھ ایسی باتیں بتائیے جو شریعت کے ساتھ میں سیدھا ٹکراؤ. اب اگر یونیفارم سول کوڈ کے اندر لاگو ہوتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر مسلمانوں کے وراثت کے جو مسائل ہیں، تو وراثت کے اندر اسلام نے جو وراثت کی جو تقسیم قرآن کے اندر اور حدیث کی روشنی کے اندر اور شریعت اسلامیہ جو بتا رہی ہے، وہ اس سے تمام دنیا کے جو ہے کروڑوں جو انسان ہیں اور ہندوستان کے تمام مسلمان اس سے مطمئن ہیں. ہمیں ہمارے خدا نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کے اوپر ہم راضی ہیں. تو لہذا وراثت کے مسائل کے اندر اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جاتا ہے اور ایسی صورتحال کے اندر سیدھا جو ہے قرآن کی آیتوں کے ساتھ اور قرآن کے احکام کے ساتھ اس کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح نکاح کے مسائل کے اندر اسلام نے جو ہے مسلمانوں کو ایک اور ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، تعدد ازواج ہے. یونیفارم سول کوڈ لاگو ہونے کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اسلام کے اندر جو ہے ہم اسلام کے اندر شریعت کے اندر ہم اپنے چچا زاد بھائی بہنوں کے ساتھ، اسی طرح مامو زاد خالو زاد، اسلام کے اندر جو ہے اس کو حقیقی بھائی بہن اور حقیقی جو ہے بھائی بہن تو تصور نہیں کیا گیا ہے. اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود لیکن یونیفارم سول کوڈ آ جانے کے بعد چونکہ اس کا
उन्होंने उसका एक तस्वुर ख्याल कर लिया है, हकीकी भाई बहन के जुमरे के अंदर, और उसके अंदर उसको दाखिल कर लिया है, तो मुसलमानों के लिए उसके लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी और बहुत सारे मसाइल हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई हम ये चीज़ जो है लागू न हो, ताकि मुसलमान इस मुल्क का जो दस्तूर है और मुल्क का आइन भी महफूज रहे, और मुसलमानों के जो माइनॉरिटीज के हैसियत से जो मुसलमानों को जो राइट्स मिले हैं उसका भी तहफ़्फ़ुज़ हो। इसी वजह से हम इस यूसीसी की जो है मुखालिफत करते हैं। सर, आपको लगता है कि जो हिंदू लॉ है उसे मुसलमानों पर थोपने की कोशिश यूसीसी के जरिए की जा रही है? वो तो हम नहीं कह सकते हैं कि हिंदू लॉ के अंदर किस तरह से तअद्दुद अज़वाज का मामला है और इसी तरह जो है विरासत का क्या मामला है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये जो भी यूसीसी के अंदर जो कुछ भी दफात है, वो तमाम के तमाम दफात जो है ये कुरान और हदीस से टकराते हैं, और मुसलमानों को उनकी जो आज़ादी है उसके ऊपर, कुरान हदीस के ऊपर अमल करने की और शरीयत के ऊपर अमल करने की जो आज़ादी, उस आज़ादी के अंदर ये कानून बहुत बड़ा रुकावट बनने जा रहा है। ऐसे कानून जब भी पास होते हैं तो इस देश का रहने वाला मुसलमान जो अपने आप को इस देश से प्यार भी करता है, उसके दिल में कितनी बेचैनी, कितना नाउमीदी होती है। मुसलमान नाउमीद तो नहीं होता है, इसलिए कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। हालात आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन हालात को फेस करेंगे, और इस मुल्क के अंदर जो हमको दस्तूरी हक मिला हुआ है उसके दायरे में रहकर हम मुखालिफत भी करेंगे, और जो है हम अदालत के दरवाज़ों के ऊपर भी जाएंगे, और वहाँ से भी हम अपने हुकूक के हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी तमाम मुसलमानों से अपील ये है कि कानून जो भी बनता हो, दुनिया के अंदर बहुत से मुल्कों के अंदर इस तरह के कानून है, लेकिन मुसलमानों को खुद जो है अपने घरों से शरीयत के ऊपर अमल करना शुरू करना चाहिए। हमें जो है हमारे कुरान, हमें जो विरासत के तकसीम का जो हुक्म दिया है कुरान ने, बहुत सारे मुसलमान जो है उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, विरासत को शरई तौर पर तकसीम नहीं करते हैं। तो लिहाजा और भी बहुत सारे मसाइल के अंदर मुसलमान खुद उसकी जो है कुरान हदीस की रोशनी के अंदर और शरीयत के मुताबिक उसके ऊपर अमल, तो हमें सबसे पहले इन तमाम जिंदगी के अंदर, हमारी पर्सनल जिंदगी के अंदर, हमारे घरों से जो है उसकी इब्तिदा करने की जरूरत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया गया है जो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सबसे पहले दीन और शरीयत हमारे घरों से, और हमारे घरों के अंदर जो है अगर हम अमल करने का इरादा कर लेंगे, हमारे माशरे के अंदर हमारे समाज को हम दीनी एतबार से हम तैयार कर लेंगे, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मुफ्ती, जब ये समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षा जो है रंजना देसाई रही है, उस समिति से आप लोगों की मुलाकात हुई थी, क्या कुछ बातें उस दौरान हुई थी? और अब ये बिल जब सामने आ चुका है तो क्या आपकी उन बातों को माना गया, कुछ हद तक उस बिल को मतलब शामिल किया गया? जी, यहाँ से अहमदाबाद के और गुजरात के अहम जिम्मेदारान का एक डेलीगेशन गया था दिल्ली के अंदर, शायद गुजरात भवन के अंदर मुलाकात हुई थी रंजना देसाई साहिबा से, और बहुत गौर से हमारी बातें उन्होंने सुनी थी हर पहलू के ऊपर, और जितने भी जो लोग भी डेलीगेशन में थे हर एक ने हर पहलू के ऊपर, अलग अलग पहलू के ऊपर उनको समझाने की कोशिश करी थी, सवाल जवाब भी हुए थे, और हमें ऐसा महसूस हुआ था कि कुछ हमारी बातों को उन्होंने नोटिस भी की थी, नोट भी किया था, और हमको लगा था कि कुछ करेक्शन होगा इसके अंदर। लेकिन बिल बगैर किसी हमारी बातों का जो हमारी राय थी और हमारी जो उसके अंदर हमारी दरख्वास्त है उसको नज़रअंदाज करते हुए ये बिल को लाया जा रहा है। दर हकीकत ये जो है मुसलमानों को थोपा जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर लागू किया जा रहा है। ये बड़ी दिक्कत की बात है, और ये मुसलमानों से आहत है, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इसे राजनीतिक नजरिए से भी देख सकते हैं? हाँ, राजनीतिक नजरिए से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी है वो पहले से ही उनके एजेंडों के अंदर ये तमाम की तमाम चीज शामिल है, और गुजरात के अंदर जो है लागू करना है। दूसरा ये स्टेट बन गया है गुजरात, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो है ये जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, सब कुछ यहाँ से है। तो ये यहाँ से लेकर जो है मैसेज देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि हम पूरे मुल्क के अंदर यूसीसी लागू कर सकते हैं। क्या सच में इस्लाम में महिलाओं का उत्पीड़न होता है? क्योंकि जब भी ये बिल पास हुआ उसके बाद में जो गुजरात के मंत्री थे उन्होंने साफ कहा
नाम तो नहीं लिया इस्लाम का या मुसलमान का, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए महिलाओं का उत्थान होगा। कैसे नहीं, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस्लाम के किसी कानून और शरीयत के किसी कानून के ऊपर अगर आपके सवालात हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर महिलाओं का या किसी का भी उत्पीड़न होता है, तो उलमा से डिस्कस करें, उसके ऊपर बहस करें। इसलिए कि आप कुरान और शरीयत के जिस मसाइल को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको मुकम्मल तौर पर आप नहीं समझ रहे। उसके लिए आपको इस्लाम के जो विद्वान हैं और उलमा किराम हैं, मुफ्तियान किराम हैं, आप आइए और हर पहलू के ऊपर आप बहस कीजिए कि चाहे वो विरासत का मामला हो, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो इद्दत का मामला हो, नानो नफका का मामला हो, मुतबन्ना का मामला हो, इन तमाम मसाइल के अंदर आप बात कीजिए। कुरान जो है, कुरान और हदीस के जितने भी अहकाम है, ये तमाम के तमाम दलाइल की बुनियाद पर आप दलाइल से बात कीजिए हमारे सामने। लेकिन अगर आप हमारे सामने दलाइल से बात नहीं करना चाहते हैं और आप अपनी जिद के ऊपर है, तो हम ऐसा ही समझेंगे कि ये बिल जो है हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और जबरदस्ती हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है।